Hello, I wish you all a good morning to the all student. We have already discussed about the structure of forebrain like cerebrum, like diencephalon and olfactory lobe. The cerebrum is the largest brain of our the body or our complete brain, and the diencephalon is a very important part of the forebrain. It is also divided into the three regions. First is the epithalamus, second is thalamus, and third is hypothalamus. Hypothalamus is a very important part of the diencephalon. Due to the hypothalamus is a connecting link between endocrine system and nervous system. They are function done by two type of first nervous system, second is endocrine system. The endocrine function is the secret of many type of hormones like releasing hormone and inhibitory hormone. They are stimulate and inhibit of the pituitary gland hormone like ACTH, FSH, LH and so on. Then the nervous system function is the control of many functional center like hunger center, thirst center, satiety center, thermoregulation center, all are center, that type of center found in the hypothalamus. And today we will going to discuss about the latter part of the brain, the midbrain and the hindbrain. What do you mean about the midbrain? The midbrain is the smallest vestigial part of the brain. It is found in the small size in between the forebrain and the hindbrain. The midbrain formed by two type of structure. The anterior part of the structure is formed by the crura cerebri, and the posterior part of the midbrain formed by four type of lobe that is called corpora quadrigemina. Corpora quadrigemina is formed by four type of lobe, two type of lobe found in upper side and the remaining two type of lobe found at the lower side of the midbrain. The upper side of the lobe known as the superior calculi and the posterior side of the lobe that is called inferior calculi. तो बच्चों इन्हीं ब्रेन को हम आज बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से हम आज पढ़ेंगे। आप बच्चों बिल्कुल एक डेडिकेशन के साथ में, एक अटेंशन के साथ में आप स्क्रीन पर बने रहिए, हमारे साथ बने रहिए। आप अपना पूरा जुनून, जिद्द और जोश के साथ आप बने रहिए और आप एक बड़े ड्रीम के साथ में काम करने जा रहे हो और बड़ा ड्रीम आपको निश्चित तौर पे एक बड़ी सफलता दिलाएगा। तो लेकिन जरूरत इस बात की है कि आप उस ड्रीम के पीछे कितने डेडिकेटेड हो, कितना अपना न्यूरॉन अटेंशन में है, कितना अपना ब्रेन अटेंशन में है। तो ये अटेंशन ही और ये कंटिन्यूटी ही हमें एक बड़ी सफलता दिलवाएगा। तो आइए बच्चों हम अपने स्क्रीन पर चलते हैं। देखिए किस प्रकार से मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन है वो प्रोजेक्ट होता है। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द मिड ब्रेन, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द हाइंड ब्रेन एंड व्हाट टाइप ऑफ नर्व ओरिजिनेट फ्रॉम द मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। तो फ्रॉम द ब्रेन देयर आर 12 टाइप ऑफ nerves are origin that is called cranial nerve. Cranial nerve, it is a very important nerve. We have how many cranial nerve from the brain? तो आंसर आएगा यहाँ पर बच्चों की 24 nerve originate from the brain और 12 pair of the nerve found in the human being and mammals. तो ये नर्व कैसी है? हम कहेंगे क्रेनियल नर्व है। ऐसी बच्चों आगे पढ़ेंगे हम कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व ओरिजिन हो रही है, ऐसी नर्व को हम स्पाइनल नर्व कहते हैं। तो देखिएगा फोरब्रेन के नर्व क्या किस प्रकार से हम बात करेंगे। तो फोरब्रेन के बाद हमने बात की, अब करेंगे हम मिड ब्रेन। What do you mean about the midbrain? What is the structure of the midbrain? What is the function of the midbrain? And it is importance. What is the importance of the midbrain in our body, in our life, in our activity? The midbrain, it is small contracted part of the brain. It contains
बोथ न्यूक्लियाई एंड ट्रैक्ट। बच्चों न्यूक्लियाई और ट्रैक्ट वर्ड पहले भी आया था। न्यूक्लियाई का मीनिंग है यहाँ पर a cluster of the cytone found inside of the CNS, a cluster of the cytone found inside of the CNS, that is called nuclei, इसे हम न्यूक्लियाई कहेंगे यहाँ पर। and a cluster of axon that is found inside of the CNS, तो ये क्लस्टर क्या कहलाएगा यहाँ पर बच्चों, आप देखिएगा न्यूक्लियाई, और ये जो क्लस्टर है यहाँ पर इसको हम कहेंगे ट्रैक्ट। तो that is both type of structure, nuclei and tract, both are found in the midbrain. Then the anterior part of the midbrain contain two longitudinal myelinated nerve fibers, that is called peduncle. What type of peduncle? It's called cerebral peduncle or curs cerebri or crura cerebri. Is it clear? That is very important point for the midbrain. The midbrain, what type of midbrain? First is anterior midbrain, second is posterior type of midbrain. The anterior midbrain have special type of myelinated nerve fiber, special myelinated nerve fibers, that is called cerebral peduncle. Just the nodule like structure or myelinated neuron found below the cerebrum, so called cerebral peduncle. That part also known as the crus cerebri or crura cerebri. Is it very important question? The crura cerebri is a part of, so answer is crura cerebri is a part of the midbrain, as well as the crus cerebri also part of the midbrain. The same name of the crura cerebri and the crus cerebri and the cerebral peduncle. It is very important. Then बच्चों देखिएगा, that is the structure of the midbrain. एक जूम स्ट्रक्चर के साथ में हम मिडब्रेन की स्ट्रक्चर देखें तो ये बच्चों आपके सामने इस प्रकार से स्ट्रक्चर पूरी की पूरी ये मिडब्रेन है। इसके अंदर ये जो पार्ट है इसको हम कहेंगे पेडंकल, क्रूरा सेरिब्राई, दैट इज कॉल्ड क्रूरा सेरिब्राई। तो ये जो पार्ट है यहाँ पर क्या होगा, क्रूरा सेरिब्राई और क्रस सेरिब्राई और सेरिब्रल पेडंकल, दैट इज एंटीरियर पार्ट ऑफ द मिडब्रेन। ये तो देखिएगा ये एंटीरियर पार्ट है, ये बच्चों यहाँ पर पोस्टीरियर पार्ट है यहाँ। तो यहाँ इस रीजन को हम कहेंगे क्रूरा सेरिब्राई कहेंगे यहाँ। देन पोस्टीरियर पार्ट, पोस्टीरियर रीजन हैव a special type of globe like structure that is called optic lobe. Okay बच्चों, optic lobe also known as colliculi, or how many number of optic lobe found in the midbrain? There are 4. 2 आपके सामने दिखाई दे रही है, 2 आपके बैक पोर्शन में यहाँ पर दिखाई दे रही है, एक इसके बैक में एक इसके बैक में यहाँ। That is called corpora quadrigemina. That type of lobe, inferior colliculi, and that is called superior colliculi. Okay, the inferior colliculi and superior colliculi found in the midbrain. Then next आगे क्या कहना चाह रहा है ये? On the posterior part of the midbrain, there are 2 type of part है, हमने देखा। The posterior part of the midbrain is called tectum. इसका एक नाम और भी दिया गया है, tectum is very important। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछा जाता है। What do you mean of the tectum? Tectum किस पार्ट को कहेंगे हम? Posterior part of the midbrain is called tectum. Are found 4 spherical projection is called colliculus or optic lobe. Then the 4 colliculus are collectively called as the corpora quadrigemina, 2 upper and 2 lower. The only 2 colliculus or optic lobe are found in midbrain of a frog as called corpora bigemina. बच्चों यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहा है?
हमारे अंदर इस प्रकार से 4 लोब है, हम इसको इस प्रकार दिखाएं, ये 4 लोब है, ये बात है उमन की। इसे हम कहेंगे कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। इसमें अपर लोब है, इसको हम कहेंगे अपन सुपीरियर कल्कुली, और नीचे की जो लोब है इसे कहेंगे हम इंफीरियर कल्कुली। फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग में ये 2 ही लोब होती है, लोब नंबर 1, लोब नंबर 2। इसे कार्पोरा बाइजेमिना के नाम से, कार्पोरा बाइजेमिना, दैट इज कॉल्ड कार्पोरा बाइजेमिना। और ये खोखली होती है, होलो होती है, इसमें एक कैविटी पाई जाती है, इस कैविटी को हम कहेंगे ऑप्टोसील कैविटी। जबकि यहाँ पर वुमन के अंदर इस टाइप की कैविटी नहीं होती है। वुमन के अंदर जो ऑप्टोसील टाइप कैविटी है डज नॉट फाउंड इन द वुमन कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना और ऑप्टिक लोब, बट यहाँ फ्रॉग के अंदर इस टाइप की कैविटी प्रेजेंट होती है। देन नेक्स्ट यहाँ पर अपने स्क्रीन के ऊपर क्या बताना चाह रहा है, द मिड ब्रेन कंटेन सेवरल अदर न्यूक्लियाई including the left and right substantia nigra also found in the midbrain। ध्यान रखें, हमने substantia nigra बेसल गैंग्लिया में भी स्टडी की थी, लेकिन वहां क्या है, इसी का एक पार्ट है जो एक्सटेंड होके यहाँ बेसल गैंग्लिया के पास में जा रहा है, बट मेनली द substantia nigra is a part of the midbrain। substantia nigra is a nuclei of the midbrain which are large and darkly pigmented nuclei। The neuron that release dopamine, substantia nigra, very very important क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर देखिएगा, substantia nigra क्या रिलीज करता है, तो आंसर क्या होगा, यहाँ पर डोपामीन रिलीज कर रहा है। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है यहाँ पर कि when any type of accident the substantia nigra is damaged, what will happen। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, डोपामाइन लेवल डिक्रीज इन दी। डोपामाइन इज ए न्यूरोट्रांसमीटर। व्हाट टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, मोस्टली इनहिबिटर न्यूरोट्रांसमीटर बट आल्सो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। बोथ टाइप ऑफ फंक्शन इन द डिफरेंट एरियाज, द एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। तो डोपामाइन विल बी डिक्रीज लेवल इन द ब्रेन, दैट इज that type of character will be developed in that type of person। The extending from the substantia nigra to the basal ganglia, basal ganglia is a part of the basal nuclei, is a part of the cerebrum, then help control the subconscious muscles activity। What is the function of the basal ganglia, what is the function of the dopamine? Dopamine is a neurotransmitter। तो द बेसल गैंग्लिया और अपन यहाँ पर कह सकते हैं सबस्टेंशिया नाइग्रा, substantia nigra is a part of the basal ganglia, basal nuclei। The substantia nigra that control which control subconscious muscles activity, subconscious muscles activity। बच्चों ये ऑप्शन में आपको मिलता है, यहाँ पर यही यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द substantia nigra? The substantia nigra is to control the subconscious muscles activity। It is very very important option for the questions। तो ये ध्यान रखा है, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। Then loss of the neuron is associated with the special type of disease that is called Parkinson disease। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछा जाता है, and the examiner that type of question can be framed, what do you mean about the Parkinson disease? What happened about the Parkinson disease? The Parkinson disease is developed due to the damage of the substantia nigra and the low secretion of the dopamine. So the subconscious movement is decreased, movement controlling decrease due to damage of the substantia nigra nuclei, which is found in the midbrain। Other nuclei in the midbrain are associated with two pair of the cranial nerve। ओके बच्चों, यहाँ जो midbrain है हम इस लोब के रूप में यहाँ बना सकते हैं, that is called midbrain। यहाँ पर दो न्यूक्लियाई और होती है, मैं एक न्यूक्लियाई मान सकता हूँ, एक न्यूक्लियाई ये मान सकता हूँ। यहाँ पर इस न्यूक्लियाई से आप देखोगे बच्चों, यहाँ पर न्यूरॉन है ओरिजिन हो रही है। देयर आर टू टाइप ऑफ न्यूरॉन, दैट इज कॉल्ड क्रेनियल नर्व है, cranial nerve है। First time the cranial nerve origin from the midbrain। First two cranial nerve है
origin from the midbrain. अपनी बॉडी के अंदर 2 टाइप की नर्व है, एक क्रेनियल नर्व है, एक स्पाइनल नर्व है। तो ब्रेन से जो भी न्यूरॉन उत्पन्न हो रहे हैं, नर्व उत्पन्न हो रही है, और वो नर्व यहाँ अपने बॉडी की विसरल पार्ट तक पहुंच रही है, तो ऐसी नर्व को हम कह रहे हैं या क्रेनियल नर्व कह रहे हैं, दैट इज कॉल्ड क्रेनियल नर्व। देयर आर फर्स्ट 2 टाइप ऑफ क्रेनियल नर्व ओरिजिन फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द मिड ब्रेन। द फर्स्ट क्रेनियल नर्व and the second cranial nerve. The first cranial nerve known as the oculomotor nerve and the second cranial nerve known as the tracheal. That the second type of cranial nerve is the trochlear cranial nerve. The according to numbering, the oculomotor cranial nerve is the third cranial nerve and the trochlear cranial nerve is number given is fourth cranial nerve. याद रखिएगा बच्चों, यहाँ पर फोर्थ क्रेनियल नर्व है और थर्ड क्रेनियल नर्व है। ये नर्व जितनी भी ओरिजिन हो रही है पैर के रूप में ओरिजिन हो रही है यहाँ पर। तो 1 पेयर वो ओकुलोमोटर नर्व है, थर्ड नर्व है, एंड द फोर्थ नर्व ट्रोक्लियर नर्व है, जो 1 पेयर। तो 2 यहाँ पर 2 पेयर नर्व ओरिजिन फ्रॉम द मिड ब्रेन। याद रखिए बच्चों, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बनता है। देन द स्ट्रक्चर ऑफ द मिड ब्रेन, एक लार्ज डिटेल हम जूम करके एक मिड ब्रेन की स्ट्रक्चर हम देखें तो ये मिड ब्रेन का यहाँ पर एंटीरियर पार्ट है। इस पार्ट को हम क्या कहेंगे बच्चों? एंटीरियर रीजन। इस रीजन को हम कहेंगे यहाँ पर पोस्टीरियर रीजन। एंटीरियर रीजन है, इसे हम यहाँ पर क्या कहेंगे? यहाँ सब सेरिब्रल पेडंकल जो प्रेजेंट होते हैं, इस टाइप के पेडंकल है। और ये जो एरिया है, ये एरिया क्या है? क्रस सेरिब्राई के नाम से जानेंगे यहाँ पर। और इसे इंफीरियर कॉलिकुलस और इसे सुपीरियर कॉलिकुलस भी कहते हैं। दैट इज कॉल्ड इंफीरियर कॉलिकुलस और सुपीरियर कॉलिकुलस। इंफीरियर जो कॉलिकुलस या पोस्टीरियर साइड ऑफ द मिड ब्रेन, दैट इज कॉल्ड द एरिया नोन एज द टेक्टम। अभी हमने बात की थी बच्चों, टेक्टम हम इसे कहेंगे। और द सेंटर पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन दैट इज कॉल्ड टेगमेंटम एंड दैट टाइप ऑफ गैंग्लिया। ये देखिएगा बच्चों, ये गैंग्लिया यहाँ पर है, ये इस साइड में गैंग्लिया है। दिस इज कॉल्ड सबस्टेंशिया नाइग्रा। इज इट वेरी वेरी क्लियर बच्चों? यहाँ very very important ganglia, the substantia nigra situated in the midbrain. Then they near the substantia nigra, the median lemnicus like structure and the reticular formation and central gray matter found in the midbrain. मिड ब्रेन है, इसके अंदर ये क्या है बच्चों? ग्रे मैटर है। ये क्या है? पेरी पेरी यहाँ पर व्हाइट मैटर है, व्हाइट मैटर। और यहाँ ध्यान रखिएगा, मिड ब्रेन में सेंटर के अंदर यहाँ ग्रे मैटर होता है और पेरी पेरी यहाँ पर व्हाइट मैटर होता है। ये पूरा का पूरा एरिया है जो रेटिकुलर फॉर्मेशन कर रहा है। कौन कर रहा है? व्हाइट मैटर कर रहा है। व्हाइट मैटर का मीनिंग मेडुलेटेड न्यूरॉन ही है, यहाँ पर फॉर्म कर रहा है। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू आर क्लियर अंडरस्टैंड अबाउट द मिड ब्रेन और यहाँ तो part of the brain. Then next हम यहाँ पर है बच्चों, a differentiate between the corpora quadrigemina in between a frog and mammals और human की बात कर सकते हैं। यहाँ पर mammals और non mammals कह सकते हैं। नॉन मैमल्स का मीनिंग यहाँ बेसिकली फ्रॉग के अंदर है, इस टाइप की स्ट्रक्चर है पाई जाती है, नॉन मैमल्स है। तो नॉन मैमल्स में क्या कह रहा है यहाँ पर? द 2 in नंबर कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। इसमें 2 नंबर होंगे यहाँ पर मिड ब्रेन के जो लोब है उसकी, ऑप्टिक लोब के। और यहाँ पर जो ऑप्टिक लोब है उसके यहाँ पर नंबर कितने होंगे? 4 नंबर होंगे यहाँ पर। इसलिए हम कहते हैं कार्पोरा बाइजेमिना और यहाँ पर कहते हैं कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना और यहाँ पर कहते हैं बाइजेमिना। सुपीरियर कार्पोरा और सुपीरियर कॉलिकुली है यहाँ प्रेजेंट होती है, इंफीरियर यहाँ पर एब्सेंट होती है। बट यहाँ पर सुपीरियर और इंफीरियर है, वो दोनों इंफीरियर कार्पोरा और इंफीरियर कॉलिकुली है, वो भी प्रेजेंट होती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बन गया। होलो विथ ऑप्टोसील, यहाँ पर ऑप्टोसील प्रेजेंट है, होलो होती है बीच में से, बिल्कुल ये खोखली होती है इस प्रकार से। तो इसको हम कहेंगे यहाँ पर ऑप्टोसील कैविटी। और यहाँ पर ये सॉलिड होती है विदाउट ऑप्टोसील। ह्यूमन के अंदर या मैमल के अंदर इसके बीच में किसी प्रकार की कैविटी नहीं होती है। इसलिए बच्चों हम क्या कहेंगे? ऑप्टोसील एब्सेंट है, जबकि फ्रॉग के अंदर अदर देन मैमल है उसके अंदर ऑप्टोसील प्रेजेंट होती है। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नेक्स्ट इज द कंसर्न विद द विजन ओनली। ये जो
इसके अंदर वन पेयर ही है जो विजन से संबंधित है, बट इन द ह्यूमन और मैमल्स द कंसर्न विद द विजन एज वेल एज हियरिंग। ध्यान रखिए, विजन का फंक्शन भी कर रही है और यहाँ पर हियरिंग से रिलेटेड भी है यहाँ। Then the control reflex from iris and eyelid, but it is control reflex from the cavity of the middle ear। मिडल ईयर है उसका रिफ्लेक्स है वो यहाँ पर पहुंचता है और उसको यहाँ पर कंट्रोल किया जाता है। देन हाइंड ब्रेन, यहां तक बच्चों आपने समझा होगा कि मिड ब्रेन द मेनली द पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना or four lobe of the midbrain. The two lobe is upper side and the two lobe is lower side. Upper lobe known as the superior calculi, the lower lobe known as the inferior calculi. The superior calculi related to the sense of the sight, but the inferior calculi related to the sense of the हियरिंग। याद रखिए बच्चों, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बनता है मिड ब्रेन का, और छोटा सा एक स्मॉल पार्ट है मिड ब्रेन है, बट इसके क्वेश्चन क्या है बहुत अच्छे बनते हैं। तो कई बार नॉलेज न होने के कारण ऐसे क्वेश्चन हम गलत कर देते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा यहाँ इस टाइप से क्वेश्चन किस प्रकार से हमें राइट करना है। हमें यहाँ पर एक बड़ा ड्रीम का पीछा करना है और हमें एक लगातार कंटिन्यूटी के साथ में लेबर करते हुए, स्मार्ट लेबर करते हुए हमें एक दिल्ली की मेडिकल कॉलेज, एम्स मेडिकल कॉलेज लेनी है और हमारे स्टेट की टॉप मेडिकल कॉलेज लेनी है। तो इसके बाद में हम आगे चले तो ये बच्चों देखिए ब्रेन की एक डिटेल स्ट्रक्चर दिखा रहा है यहाँ, एक मूविंग स्कल है। इस प्रकार से ये स्कल क्या कर रहा है, मूविंग कर रहा है और चारों तरफ से आपको ये दिखाने का प्रयास कर रहा है कि एक ब्रेन की स्ट्रक्चर किस प्रकार से होती है। तो अपर पार्ट यहाँ पर जो सेरिब्रम पार्ट है, ये पूरा का पूरा पार्ट सेरिब्रम पार्ट है। ये आप देखिएगा, ये जो कंप्लीट रीजन है इसको हम क्या कहेंगे, सेरिब्रम कहेंगे। सेरिब्रम में मैंने कहा टू लोब आपको दिखाई दे रही है, ये देखिए एक राइट लोब एक लेफ्ट लोब, ये और इसके नीचे यहाँ पर मिड ब्रेन सामने से दिख रहा है। मिड ब्रेन के नीचे ये देखिए बच्चों हाइंड ब्रेन के ये दोनों ये क्या है, यहाँ पर ये सेरिबेलम पार्ट है। फिर ये बीच में देखिएगा यहाँ पर ये पोन्स पार्ट है और नीचे ये मेडुला पार्ट है। तो ये पूरा का पूरा यहाँ एरिया है, ये एरिया किसका, हाइंड ब्रेन का है। तो इस हाइंड ब्रेन की स्टडी हम करें तो the hind brain, the last part of the brain, the end part of the brain, which is formed by three main structures. First is pons, second is cerebellum, and third is medulla oblongata part found in the hind brain. We can see that the hind brain form contain three region of the brain. First is pons part, second is cerebellum part, third is medulla oblongata part. It is very important part for the controlling of our the visceral activity for our life. ध्यान रखिएगा यहाँ बच्चों, हाइंड ब्रेन में कई बार कोई किसी प्रकार का एक्सीडेंटल डैमेज हो जाए तो हमारी डेथ हो सकती है, परंतु यहाँ पर जो फोरब्रेन में यदि किसी प्रकार का एक्सीडेंटल डैमेज हो जाए तो हमारी डेथ नहीं होगी, जबकि हम कॉन्शियसनेस हो जाएंगे यहाँ पर। तो इस प्रकार की ऐसी घटनाएं इवेंट यहाँ डेवलप होते हैं। तो हम यहाँ पर इसकी डिटेल स्टडी करेंगे। यहाँ पर मिड ब्रेन की बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इस पर आप अटेंशन रखिएगा। पूरा अपना पूरा का पूरा ब्रेन है, वो पूरा का पूरा एनालिसिस है, वो कहाँ रखोगे आप, इस स्क्रीन के ऊपर रखोगे, क्योंकि हम आगे आने वाला जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस क्वेश्चन अक्सर द एग्जामिनर कैन बी फ्रेम क्वेश्चंस इन द कमिंग एग्जाम दैट टाइप ऑफ टॉपिक, दैट टाइप ऑफ मैटर। तो व्हाट इज द मैटर ऑफ द हाइंड ब्रेन? तो देखिएगा द हाइंड ब्रेन है फॉर्म बाय थ्री टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स, पॉन्स स्ट्रक्चर, देन सेकंड इज सेरिबेलम, देन थर्ड इज मेडुला ऑब्लांगेटा। सेरिबेलम बच्चों देखिएगा, सेरिबेलम इज ए सेकंड लार्जेस्ट ब्रेन, सेकंड लार्जेस्ट brain. Cerebellum is a second largest brain, so also known as a little brain. LB लिख रहा हूं बच्चों में, LB फॉर स्टैंड फॉर लिटिल ब्रेन। सेरिब्रम है वो क्या है, एक लिटिल ब्रेन का खिताब दिया गया है, लिटिल ब्रेन के रूप में सेरिबेलम को जाना जाता है बच्चों। ये भी सेरिब्रम की तरह इसकी स्ट्रक्चर है, बट यहाँ पर एक उससे छोटा होता है और हमारी फाइन मूवमेंट, हमारे अंदर जो है कहने का मीनिंग है जो मस्कुलर मूवमेंट को कंट्रोल करने का काम है सेरिबेलम करता है। तो वन बाय वन यहाँ पर अपन बात करेंगे। यहाँ ये बच्चों आप देखिएगा इधर
एक ब्रेन की इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ दिखाई गई है, जिसमें ये जो एक पार्ट है, इस पार्ट को हम यहाँ पर थैलेमस कहते हैं, जो डायनसिपिलान का एक बड़ा पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहां पर जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर आती है और यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन है वो सेरिब्रम को सेंड की जाती है। अब इसके बाद में हमने मिड ब्रेन की बात की, तो ये बच्चों मिड ब्रेन है, जिसमें कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देन लोअर साइड ऑफ द मिड ब्रेन फाउंड ए स्पेशल स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में आप यहाँ पर देखिए स्क्रीन के ऊपर ये जो एक बड़ा पार्ट यहाँ दिखाया गया है, ये एक लार्ज रीजन दिखाया गया है, इसे हम कहते हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन, पोन्स कहेंगे। देन सेकेंड पार्ट ऑफ द hind brain known as the cerebellum, एंड थर्ड पार्ट ये एक यहाँ पर स्टेम लाइक स्ट्रक्चर दिखाई गई है यहाँ, दैट इज कॉल्ड मेडुला। मेडुला कनेक्ट विद द स्पाइनल कॉर्ड। तो बच्चों ये आप यहाँ पर बहुत अच्छी तरह यहाँ समझ गए होंगे कि ये पार्ट यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं यहाँ। देन यहाँ एक वर्ड और काम में लिया है, ब्रेन स्टेम। व्हाट डू यू मीन अबाउट द ब्रेन स्टेम? ब्रेन स्टेम का मीनिंग है यहाँ पर special type of tract, special type of brain form a stem like structure, a stem of the brain that is called stem brain या brain stem कह सकते हैं हम। The brain stem is formed by the midbrain and hindbrain except cerebellum। यहां हम ये ब्रेन स्टेम को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें क्या कौन कौन सा हिस्सा यहाँ पर इन्वॉल्व है। नंबर 1 इज द मिड ब्रेन, नंबर 2 इज द मेडुला, नंबर 3 इज द पोन्स। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं बच्चों, देखिएगा ब्रेन स्टेम क्या है। तो ब्रेन स्टेम इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द ब्रेन स्टेम कंटेन और ब्रेन स्टेम मेड बाई, तो फर्स्ट बड़े तौर पे हम आंसर देखें तो मिड ब्रेन प्लस हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन प्लस हाइंड ब्रेन, दैट इज कॉल्ड ब्रेन स्टेम। एक क्वेश्चन तो ये हो गया यहाँ पर बच्चों। देन और हम आंसर यहां दे सकते हैं, या ब्रेन स्टेम फाउंड इन बिटवीन, तो आप यहां पर कहोगे डाइनसिफेलॉन एंड स्पाइनल कॉर्ड। डाइनसिफेलॉन एंड स्पाइनल कॉर्ड। The midbrain found in between the brain stem is found in between the diencephalon and spinal cord। और हम यहाँ पर कह सकते हैं फोर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है, इसके बीच में जो स्ट्रक्चर बनती है, एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर बनती है, दैट इज कॉल्ड ब्रेन स्टेम। और बच्चों हम यहाँ पर कह सकते हैं मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन को हम और यहाँ पर ओपन करें बड़े स्तर पर, तो आप देखिएगा मिड ब्रेन प्लस पोन्स प्लस मेडुला, इट इज ए पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम। और बच्चों हम यहां पर कह सकते हैं मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन एक्सेप्ट cerebellum, that is called brain stem। तो कई तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन यहाँ फ्रेम किया गया है और आता है यहाँ पर व्हाट डू यू मीन अबाउट दी ब्रेन स्टेम। अब आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि ब्रेन स्टेम क्या है, अच्छी तरह आप यहाँ बता सकते हो ब्रेन स्टेम क्या है। तो ये पूरा का पूरा एरिया यहाँ पर क्या है, एक ब्रेन स्टेम बना रहा है, जो यहाँ पर फोर ब्रेन के नीचे, डाइनसिफेलॉन के नीचे और मिड ब्रेन से लेकर स्पाइनल मेडुला तक का जो हिस्सा होता है, ये क्या बनाता है, ब्रेन स्टेम बना रहा है। तो बच्चों यहाँ तक बात आप समझ में आई होगी आपके बहुत अच्छी तरह। देन नेक्स्ट हम यहाँ पर करें कि फर्स्ट पार्ट द पोन्स और पोन्स वेरोलाई, द कंप्लीट नेम ऑफ द फुल फॉर्म ऑफ द पोन्स वेरोलाई, शॉर्ट में हम यहाँ पर पोन्स के नाम से जानते हैं। इट इज स्मॉल स्पेरिकल प्रोजेक्शन विच इज सिचुएटेड बिलो द मिड ब्रेन एंड अपर साइड ऑफ द मेडुला ऑब्लांगेटा। जनरल सी बात है बच्चों, कहां प्रेजेंट है यहाँ पर, दो
नीचे मेडुला ऑब्लांगेटा है, उसके अपर साइड में प्रेजेंट है और मिड ब्रेन के ठीक नीचे यहाँ पर प्रेजेंट है, और दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द कनेक्शन ऑफ द मिड ब्रेन एंड सेरिबेलम पार्ट. दैट टाइप ऑफ न्यूक्लियस, दैट टाइप ऑफ न्यूरॉन connected to the hindbrain by the pons varoli. Then it consists of the many transverse and longitudinal nerve fiber. They are originate from the midbrain and they are also originate from the cerebellum, and that type of nerve fiber connect with the pons part of the hindbrain. Then transverse nerve fiber connect with the cerebellum, lateral lobe of the cerebellum, and longitudinal fiber connect cerebrum to medulla oblongata. बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर बच्चों, बात समझे मेरा. हम यहाँ पर कह रहे हैं क्या क्या कहना चाह रहे हैं. ये एक छोटा सा मैं पार्ट बना रहा हूं. ये एक रीजन है जिसके अंदर ये क्या है, यहाँ पर सेरिबेलम है. यहाँ तो यहाँ कुछ फाइबर तो ऊपर से यहाँ पर आ रही है जो फोर ब्रेन से डायरेक्ट आ रही है, और कुछ फाइबर यहां से आ रहे हैं. ये हमारे पास में पोन्स पार्ट है, और ये हमारे पास में मेडुला पार्ट है, और इसको हम कहेंगे सेरिबेलम, सीबीएलम, सेरिबेलम, और ऊपर से सेरिब्रम. तो कुछ फाइबर यहाँ अपर सेरिब्रम से बच्चों यहाँ पर आ रहे हैं जो सेरिबेलम, और कुछ फाइबर सेरिबेलम से आ रहे हैं. तो सेरिबेलम से जो यहाँ फाइबर एंटर करेंगे, ऐसे फाइबर को हम कहते हैं बच्चों लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर. लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर जो कनेक्ट कर रहे हैं किसको, पोन्स को कनेक्ट कर रहे हैं. सम फाइबर्स arise from the cerebellum, that is called lateral fibers. The lateral fibers to the connect or transfer fiber to the connect of the cerebellum. तो ऐसे फाइबर को हम बच्चों क्या कहेंगे यहाँ पर, ट्रांसवर्स फाइबर. तो ऐसे फाइबर है यहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं सेरिबेलम को. तो आप बच्चों यहाँ पर समझ गए होंगे, दैट इज टू टाइप ऑफ फाइबर अराइज फ्रॉम दी cerebrum and cerebellum. From the cerebrum the longitudinal fiber, and from cerebellum the transfer fibers are arise and connect to the pons part of the hindbrain. Then it has apneustic area and pneumotaxic area for the regulation of the respiration. Is it very very important question बच्चों? Is it clear? That type of area also discussed in the respiration. यहाँ ये कह रहा है दो टाइप के बच्चों सेंटर होते हैं. एक सेंटर ये होता है और एक सेंटर यहाँ पर ये होता है. एक सेंटर को हम कहेंगे एपन्यूस्टिक सेंटर, और दूसरे सेंटर को हम यहाँ पर कहेंगे न्यूमोटैक्सिक सेंटर. Pneumotaxic center that are control or regulate or regulation of the breathing, regulation of the respiration. So it is a very very important question asking in the coming examination or can be framed by the examiner. Okay बच्चों, यहाँ से आप बात समझ गए होंगे. देन नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे कि इसके बाद में क्या यहाँ पर कहा गया है. इट कंटेन nuclei associate with the following four pair of the cranial nerve है. ध्यान रखें, cranial nerve की बात करें, two pair of the cranial nerve arise from the midbrain. Then four pair of the cranial nerve arise from the pons part of the hindbrain. What is the name of that type of cranial nerve? First is the trigeminal nerve, fifth nerve, abducens nerve, sixth nerve, facial nerve, seventh nerve, and the vestibulocochlear nerve is eighth pair of the nerve arises from the pons region of the hindbrain. That type of nerve arises from the special type of nuclei which is found in the pons region. Okay बच्चों, ये बात भी आप यहाँ पर समझ गए होंगे. Then next very very important part is the cerebellum. सेरिबेलम आप देखिएगा इस डायग्राम में, देखिए बच्चों यहाँ पर ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है यहाँ जो
दिखाया गया है, यहाँ डार्क कलर में यहाँ पर दिखाया गया रीजन है, ये वायलेट रीजन में और ब्लू रीजन में यहाँ पर दिखाया गया है। ये जो रीजन है और ये रीजन है, दोनों इस प्रकार से वापस मूव करके आ रहा है। ये बाहर की साइड में अपने, मैं ये कह सकता हूँ बच्चों, यहाँ मेरे जो है हाथ के ऊपर देखिएगा, नीचे हाथ के नीचे देखिएगा, यहाँ जो पार्ट होता है ये बैक साइड में एक बाहर लिए हुए होता है, एक रीजन लिए होता है, इसको हम क्या कहेंगे, सेरिबेलम यहाँ कहते हैं। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट part of the hindbrain, that is also known as little brain, that is also called the second largest part of the brain. तो इसलिए हम इसको कहेंगे cerebellum. What do you mean about the cerebellum? That is a very very important structure and beautiful diagram of the cerebellum. Generally cerebellum remove from the our brain. तो यहाँ ये जो cerebellum है इससे हम यहाँ पर रिमूव करेंगे तो किस टाइप से यहाँ cerebellum आपको दिखाई देगा। तो देखिएगा, you can see the structure of the cerebellum. The cerebellum is formed by the mainly two lobe. First is the right lobe and the second is the left lobe. That type of lobe found in the cerebellum, so called the right cerebellar lobe and left cerebellar lobe. That is also known as the hemisphere, cerebellar hemisphere. So two type of cerebellar hemisphere. In between the right and left cerebellar hemisphere found a worm-like small lobe that is called vermis. That is a third type of lobe. So the cerebellum is formed by the three lobe. First is the right cerebellar lobe, second is the left cerebellar lobe, third is vermis. The vermis found in between the two cerebellar lobe is it very important lobe. The vermis, anterior part of the vermis have a special floccular nodular lobe and the posterior lobe, important part of the vermis, that is important part of the cerebellar part. The inferior view of the cerebellar hemisphere, that is a cavity like structure found in the medulla part, that is called fourth ventricle. आगे देखिएगा बच्चों, fourth ventricle found anterior side of the cerebellum. In the upper side of the ventricle found some small peduncle like structure that is called a cerebral peduncle. There are three type of peduncle: superior peduncle, middle peduncle and inferior peduncle. In the cerebellum that is found some small lobular structure that is called a folia like structure. Is it clear? Generally inferior and the superior view, anterior part and superior part of the posterior part of the cerebellum. And you can see a transverse section, a mid-sagittal section of the cerebellum. पूरा जो ब्रेन है, मेरे ध्यान रखिएगा, ये ब्रेन है, इसको मैं इस प्रकार से यहाँ पर सेक्शन लूं तो ऊपर तो क्या मिलेगा, आपका सेरिब्रम मिलेगा और नीचे की साइड में यहाँ पर सेरिबेलम मिलेगा. तो दैट इज यू कैन सी मिड सेजिटल सेक्शन ऑफ द सेरिबेलम. व्हाट यू कैन सी द मिड सेक्शन ऑफ द सेरिबेलम. तो इनसाइड ऑफ द सेरिबेलम, द लेटरल साइड ऑफ द सेरिबेलम में देखिएगा यहाँ पर द मेसेनसिफेलिन एक्वेडक्ट लाइक स्ट्रक्चर, aqueduct, that is a ventricle like structure, and this is the called mammary body. Then the mesencephalon part of the brain, then fourth ventricle found in the mid hind brain of the medulla, then hind brain of the medulla, then that is called pons region, and front of the pons region a tree like structure is called the cerebellum, that is called pineal body, and the corpora quadrigemina, it is a part of the midbrain. So that type of a structure known as the cerebellum, just like a tree-like of a structure. That type of tree-like structure formed by the white matter of the brain. The white matter of the brain, just like a finger formed inside of the cerebellum. That type of finger embedded in the digitation in the gray matter. So appearance just like a tree, that is called the vital tree or arbor vitae, or arbor vitae is formed by the white matter, and the surrounding of the arbor vitae is formed by the special type of matter is called gray matter. So that is gray matter. It is gray matter, and is it arbor vitae or white matter.
तो इस प्रकार से एक मिड सेजिटल सेक्शन अपन देखे हैं यहाँ पर बच्चों, तो इस टाइप की स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी। ये एक साइड की स्ट्रक्चर दिखाई गई है, ऐसे ही यहाँ पर दूसरी साइड में ये लेफ्ट साइड है और ऐसे ही यहाँ पर राइट साइड में ऐसी स्ट्रक्चर यहाँ प्रेजेंट होती है। तो आई होप यू आर क्लियर अंडरस्टैंड अबाउट द हाइंड ब्रेन ऑफ द सेरिबेलम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बच्चों, इससे यहाँ पर क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हैं। तो इसे आप यहाँ आई होप यू आर क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंड अबाउट द सेरिबेलम। देन अब अपनी स्क्रीन पर देखिएगा इस सेरिबेलम को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं हम। यहाँ पर क्या इसका यहाँ पर जो वर्णन है वो कर सकते हैं। द मेडअप ऑफ 3 lobes, 2 lateral lobe and 1 is the vermis, that is worm like lobe. It is divided into 9 segment. The cerebellum also divided into how many segment? That is 9 segment. Both lateral lobe become enlarged and spherical in the shape. So lateral lobe of cerebellum are also called the cerebellar hemisphere. जो 2 होती है, एक राइट साइड में होती है और एक लेफ्ट साइड में होती है बच्चों। हमने ये भी बात की इस टाइप से, ये एक राइट साइड में है और ये क्या है, एक लेफ्ट साइड में है। और इस प्रकार से बीच के अंदर क्या है, एक वर्मिस लाइक स्ट्रक्चर है, वर्म लाइक स्ट्रक्चर है, इसको वर्मिस कहेंगे। ये राइट है और ये लेफ्ट लोब है, किसकी है, सेरिबेलम की है यहाँ। तो बच्चों यहाँ पर ये बात आपके समझ में आई है बहुत अच्छी तरह है। देन ड्यू टू दिस रीजन द रेगुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द वॉलंटरी मसल्स इज मोर डेवलप एज कंपेयर टू देयर एनिमल्स। फंक्शन क्या है सेरिबेलम का यहाँ पर, इट इज रेगुलेशन ऑफ एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द वॉलंटरी मसल्स। हमारी जितने भी वॉलंटरी मसल्स है, स्केलेटल मसल्स है, उसकी मूवमेंट को कंट्रोल कौन कर रहा है, सेरिबेलम बच्चों मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है। देयर cerebellar peduncle are form superior cerebral peduncle attached with the midbrain। तो सुपीरियर पेडंकल है वो कहाँ अटैच रहता है, ध्यान रखिए यहाँ मिड ब्रेन के साथ में ये कनेक्ट रहता है। द मिडल सेरिब्रल पेडंकल अटैच विद द पोन्स एंड द इंफीरियर सेरिब्रल पेडंकल अटैच विद द मेडुला ऑब्लांगेटा। तो 3 टाइप के पेडंकल है, सुपीरियर पेडंकल, मिडल पेडंकल और इंफीरियर पेडंकल। सुपीरियर पेडंकल है ये मान लो मैं कह सकता हूँ कि एक कनेक्शन है, ये 3 पेडंकल है यहाँ पर, ये 3 पेडंकल है यहाँ। सुपीरियर पेडंकल है ये यहाँ कनेक्ट होता है किसके साथ, मिड ब्रेन के साथ, ये सुपीरियर पेडंकल। और ये जो पेडंकल है ये किसके साथ में, पोन्स के साथ में, ये मिडल पेडंकल। और इंफीरियर पेडंकल है, इंफीरियर पेडंकल है, ये इंफीरियर पेडंकल है किसके साथ कनेक्ट होता है, तो आप कहोगे मेडुला ऑब्लांगेटा के साथ में कनेक्ट रहता है। तो इस टाइप से ये तीनों पेडंकल है प्रेजेंट होते हैं। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाते हैं बच्चों यहाँ। अब इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द hind brain? It consistently receive information that is a input signal from the proprioceptor in muscles, tendons, joint, receptor for equilibrium and the visual receptor of the eye. It regulates rapid movement like running and typing। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर है द सेरिबेलम में। अभी हमने कहा कि वॉलंटरी जो रिएक्शंस होती है, वॉलंटरी जो मूवमेंट होती है उसको कंट्रोल कर रहा है, बट उसको कंट्रोल कैसे कर रहा है, तब देखिएगा कि कंटिन्यूअसली द सेरिबेलम रिसीव इंपल्स फ्रॉम स्पेशल टाइप ऑफ पॉइंट लाइक जॉइंट, वेरियस जॉइंट आवर बॉडी, various type of joint found in our body like ball and socket joint, hinge joint, pivot joint, that type of joint। Inside of the joint found a special type of a very important type of receptor that is called proprioceptor। Proprioceptors found in the ligament, tendons of the joint। Then a many impulse develop from the skeletal muscles, that type of impulse received by the cerebellum for the controlling of the coordination of the fine movement or voluntary movement, as well as any another type of the impulse received by the cerebellum like
आई से जितने भी इम्पल्स यहाँ पर जा रहे हैं वो सेरिबेलम फॉर द कंट्रोलिंग ऑफ द मूवमेंट है, फॉर द रेगुलेशन ऑफ द मूवमेंट है, और हियरिंग से संबंधित जो इम्पल्स जा रहे हैं वो भी सेरिबेलम के पास में जाएंगे और हमारी मूवमेंट को ये कंट्रोल करती हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वेयर इज द सिचुएशन सिचुएटेड ऑफ द प्रोप्रियो रिसेप्टर है, द प्रोप्रियो रिसेप्टर फाउंड इन द मसल्स, टेंडन्स, जॉइंट रिसेप्टर, दैट इज कॉल्ड द प्रोप्रियो रिसेप्टर। बच्चों यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम किया गया है और एक अच्छा क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ये कौन से रिसेप्टर यहाँ पर द इक्विलिब्रियम, आपकी बॉडी को बैलेंस बनाने के लिए, आपके जो फाइन मूवमेंट है वो करवाने के लिए, एक बिल्कुल फाइन मूवमेंट का मीनिंग में जैसे ये यहाँ पर एक फिंगर ली और इसको मैं यहाँ टच कर रहा हूँ या अपनी नोज के साथ में, तो ये यहाँ कौन करवा रहा है, ये सेरिबेलम यहाँ पर करवा रहा है। यहाँ इसी प्रकार आप देखिएगा हम एक स्ट्रेट कंडीशन में यहाँ मूवमेंट कर रही हैं, एक स्ट्रेट कंडीशन में हम यहाँ पर स्टैंडिंग है या हम यहाँ पर कहीं बैठे हैं, तो ये कंट्रोलिंग कौन कर रहा है, ये सेरिबेलम कर रहा है। स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल करके हमें एक फाइन मूवमेंट, एक फाइन स्ट्रक्चर बनवा रहा है, तो इस प्रकार से ये रेगुलेट कर रहा है। आप देखिए अपनी लाइफ के अंदर कुछ ऐसे पर्सन मिल जाते हैं जो अल्कोहल ड्रिंक करते हैं, आफ्टर अल्कोहल ड्रिंकिंग उस पर्सन की मूवमेंट है वो फाइन नहीं रहती, इस प्रकार से ये बिल्कुल लहराता हुआ आगे गति करता है, मूवमेंट करता है, उसको पता नहीं होता हमें किस प्रकार से आगे बढ़ना है, ड्यू टू द अनकंट्रोल ऑफ द सेरिबेलम एट द प्रेजेंस ऑफ द अल्कोहल। अल्कोहल क्या कर रहा है, इन रिसेप्टर्स को इनहिबिट कर देता है, प्रोप्रियो रिसेप्टर्स को इनहिबिट कर देगा, और आईज की जो साइट बन रही है, आईज में जो साइट बन रही है या विजन बन रही है वो ब्लरिंग हो जाएगी यहाँ पर। इस कारण यहाँ प्रॉपर जो रिसेप्शन है, प्रॉपर इंपल्स है वो यहाँ नहीं पहुंच पाएंगे सेरिबेलम में, जिसके कारण मूवमेंट तो होगी लेकिन इस प्रकार से ब्लरिंग मूवमेंट होगी, तो यह एक फाइन मूवमेंट है वो नहीं हो पाएगी। तो इस कारण ये क्या है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, द एग्जामिनर दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन फ्रेम इन द एग्जामिनेशन व्हाट, तो आप कह सकते हैं व्हेन द सेरिबेलम इज डैमेज और when a person drink of the alcohol, what type of function inhibited or what type of function is affected by the person to the person, तो आप कहोगे यहाँ पर movement is the affected by the presence of the alcohol when on damage of the cerebellum part। तो ये बच्चों आप समझ गए होंगे, यहाँ पर बहुत ही एक important function यहाँ पर हो रहा था। The maintenance of the balance and the equilibrium and maintenance of the muscle tone, that is a very very important function of the cerebellum। ये क्वेश्चन ऑप्शन में मिलेगा। यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर मेंटेनेंस ऑफ द बैलेंस कर रहा है और मेंटेनेंस ऑफ द इक्विलिब्रियम कर रहा है। आपके इक्विलिब्रियम आपकी एक डायरेक्शन में, एक सही डायरेक्शन में, यहाँ हम एक हाथ इस प्रकार से हिला रहे हैं, मूविंग ऑफ द हैंड, द मूविंग ऑफ द यहाँ पर नेक और द मूविंग ऑफ द लेग, दैट इज कंट्रोल बाय द सेरिबेलम due to a fine movement occur and controlled by the cerebellum region of hindbrain. Then third part is a very very important part of the hindbrain, that is called medulla oblongata. Medulla oblongata is a last part of the cerebellum, last part of the hindbrain, last part of the hindbrain and part of the brain is called medulla oblongata, that is connected to the a rod-like structure is called the spinal cord। Okay बच्चों, यहाँ पर the posterior part of the brain is tubular and cylindrical in shape। The midbrain, pons and medulla are situated in the one axis and the called as the brain stem। ये एक ही एक्सिस में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, that is called brain stem। The example of the nuclei in the medulla that regulate the vital activity include the cardiovascular center and the medullary rhythmicity area। Very very important, that type of question framed by the exam, by the examiner in the coming exam can be framed what the cardiovascular center situated in the, तो आंसर होगा in the medulla oblongata, as well as the rhythmicity area। Rhythmicity area meaning the controlling or regulation of the respiration, or the respiration, that type of center situated or present
in the medulla region. So that type of activity is called the vital activity, and the vital activity controlled by the medulla oblongata. Is it clear बच्चों? ये बहुत ही important है. That type of center we already discussed in the respiratory system, the rhythmicity area and the respiratory center or medullary center, or also we are discussed the cardiovascular center that is present found in the medulla and control the vital activity and control the activity of the heart and the activity of the lungs muscles. Okay बच्चों, it is very important. The cardiovascular center regulate the rate and force of the heartbeat and diameter of the blood vessel. यहाँ पर हार्ट की एक्टिविटी को कंट्रोल तो कर ही रही है, साथ में वेसल्स के वेसो कंस्ट्रिक्शन और वेसो डायलेशन को भी कंट्रोल कर रहे हैं. यहाँ कौन? यहाँ मेडुला कंट्रोल कर रहा है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसीलिए कहते हैं बच्चों कि यदि किसी एक्सीडेंट के कारण मेडुला पार्ट डैमेज हो गया तो क्या होगा, क्या व्हाट यू हैपन अबाउट द रीजन. तो आप कहोगे यहाँ पर कि व्हेन द डैमेज ऑफ द मेडुला रीजन बाय द एक्सीडेंट द पर्सन विल बी डाई, पर्सन बचेगा नहीं. और व्हेन द डैमेज ऑफ द सेरिब्रम और द सेरिबेलम पार्ट ऑफ द ब्रेन द पर्सन डज नॉट डाई, डज नॉट विल बी डाई. ये क्या है, इस प्रकार की इवेंट नहीं होगी. यहाँ पर पर्सन है वो जीवित रहेगा बट यहाँ पर अनकॉन्शियस कंडीशन में रहेगा. बट ऐसे केस के अंदर यहाँ पर मेडुला का पार्ट डैमेज हो जाए तो यहाँ है पर्सन डेथ हो जाती है या पर्सन की. ओके बच्चों, इसी मेडुला रीजन के अंदर आप देखिएगा अदर टाइप ऑफ सेंटर आल्सो फाउंड इन द मेडुला रीजन. द मेडुलरी रिदमिसिटी एरिया ऑफ द रेस्पिरेटरी सेंटर एडजस्ट द बेसिक रिदम ऑफ ब्रीदिंग. तो ये बच्चों हम यहाँ पर बात पहले कर चुके हैं, आप बहुत अच्छी तरह इसको जानते हैं मेडुलरी रिदमिसिटी कैसे यहाँ पर फंक्शन कर रही है. देन द मेडुला कंटेन ए न्यूक्लियरी एसोसिएशन विद द 5 पेयर ऑफ द क्रेनियल नर्व ओरिजिन फ्रॉम द मेडुला. देन फर्स्ट देखिएगा 2 पेयर ऑफ द क्रेनियल नर्व origin from the midbrain, 4 pair of the cranial nerve origin from the pons, and remaining 5 pair of the cranial nerve origin from the medulla part है. तो आपके पास में देखिए which type of nerve है, the vestibular cochlear nerve है, nerve number 8 and glossopharyngeal nerve है, vagus nerve है, accessory nerve है and hypoglossal nerve है. तो ये इस प्रकार से बच्चों टोटल 11 पेयर ऑफ द नर्व हो गई यहाँ पर. बट olfactory nerve origin from the olfaction region of the brain, so 12 pair of the nerve origin from the brain, so called the cranial nerve. We have 12 pair of the cranial nerve. Then many type of reflex center also found in the medulla, like vomiting type of reflex center, swallowing type of reflex center, sneezing type of reflex center and coughing type of reflex center. अब देखिएगा कई बार हमें वोमिट आती है, तो इस प्रकार से वोमिटिंग क्यों आती है कि व्हेन द मेडुला वोमिटिंग सेंटर इज एक्टिवेटेड देन द आवर स्टोमक मटेरियल विल बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द बक्कल कैविटी फ्रॉम द माउथ, दैट इज कॉल्ड वोमिटिंग. इसके लिए बच्चों डॉक्टर से ऐसी जो ड्रग डिजाइन करते हैं, ऐसी मेडिसिन डिजाइन करते हैं जो इस वोमिट सेंटर को क्या इनहिबिटेड रखे. कुछ बच्चे कुछ लोग ऐसे जो जैसे गाड़ी में जैसे बैठते हैं तो वोमिटिंग शुरू हो जाती है ड्यू टू द स्मेल ऑफ द पेट्रोल और डीजल. द वोमिटिंग सेंटर विल बी एक्टिवेट एंड द मटेरियल ऑफ द स्टोमक एक्सपेल फ्रॉम द माउथ, दैट इज कॉल्ड वोमिटिंग. ऐसे केस के अंदर हम क्या कर रहे हैं, मेडिसिन हम आप जब डॉक्टर बनोगे बच्चों तो ऐसे जब पेशेंट आएंगे आपके पास में तो आप क्या करोगे, इस टाइप की ड्रग आप दोगे जिससे मेडुला का जो सेंटर है वोमिटिंग सेंटर है वो इनहिबिट रहे, और ये सेंटर इनहिबिट रहेगा तो वोमिटिंग है वो नहीं हो पाएगी. तो इस प्रकार से वोमिटिंग सेंटर यहीं पर प्रेजेंट है. हमें किसी प्रकार की स्वेलोविंग जो है उस समय सेंटर कर रहे, खाना जब खा रहे हैं लंच डिनर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो उसमें स्वेलोविंग की जो रिएक्शन होती है वो भी ये अपने आप होती है, ऑटोनोमस होती है, वो भी कंट्रोल कौन कर रहा है, मेडुला कर रहा है. स्नीजिंग आती है, स्नीजिंग को कंट्रोल कौन कर रहा है, मेडुला कर रहा है. एंड कपिंग है और खांसी जो आती है उसको भी कंट्रोल कौन कर रहा है, यहाँ पर मेडुला पार्ट है वो कर रहा है.
तो इज इट ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इज इट क्लियर? आई होप यू हैव ए क्रिस्टल क्लियर नॉलेज अबाउट द मेडुला एंड देयर सेंटर। तो इस बात को आप बच्चों यहाँ पर बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। यहाँ जो रिफ्लेक्स रीजन रिफ्लेक्स पार्ट ऑफ द मेडुला एंड दैट कंट्रोल द वेरियस एक्टिविटी ऑफ आवर बॉडी। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो कॉल्ड वाइटल ऑर्गन, वाइटल सेंटर कंट्रोलिंग ऑर्गन हम इसे कह सकते हैं। ये बच्चों यहाँ तक की बात आपके यहाँ समझ में आई है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने यहाँ पर किया है। बस जरूरत किस बात की है? आपका जज्बे की, आपके जोश की, आपके जुनून की, आपकी कंटिन्यूटी की, और जरूरत किस बात की है? आप कहते हैं जितना ज्ञान हम फैलाएंगे उतना ही वातावरण क्या प्रकाश में होगा। तो आपको जरूरत है अपने साथियों को बताएं, आप ज्यादा से ज्यादा आप इस ज्ञान को फैलाएं, जिससे आपका जो ब्रेन है वो और शार्प होगा और ज्यादा इंटेलिजेंट होगा और यहाँ पर लाइटिंग यहाँ पर डेवलप करेगा। और फैलाना, यहाँ अपने साथी है, अपने फ्रेंड्स है, उसको बताए हम जिस प्लेटफॉर्म से सब्सक्रिप्शन ले रखा है, हम जो पढ़ रहे हैं इतना शानदार तौर से अपने ब्यूटीफुल तरीके से हमारे को सिलेबस करवाया जा रहा है, जो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। और इस प्रकार से प्लेटफॉर्म से हम यहाँ पर जुड़े, इस प्रकार के लेक्चर से हम जुड़े, जिसे ज्यादा से ज्यादा हमें इसका फायदा, इसका बेनिफिट मिलेगा और ये बेनिफिट आपके एक ड्रीम को प्राप्त करने में और बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसी के साथ बच्चों फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।